اپنے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی خدمت کرنی چاہیے, ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے, ان کا کام کرنا چاہیے. صرف ایک ہی بات ہے کہ اپنے قبیلے کو دیکھے, غریب آدمی بھی ہیں, بہت ہلکے بھی ہیں, جو جتنا کر سکتا ہو اس کو کرے. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے, اللہ تعالیٰ سب کی خوش رکھے. میں درخواست کروں گا سینئر نائب صدر لاہور میاں اکبر ارائی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں, اور میاں عثمان صاحب کی تائید کریں. کتنے مختصر وقت میں کتنی بڑی بات کہیں گے. کلیپنگ کریں ان کے لیے. رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز ممبران, مہمانان گرامی, سب کو خوش آمدید. میاں عثمان صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں, اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی برادری کی فلاح اور بہبود کے لیے جتنا آپ سے ہو سکے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کرنا ہے, جتنی آپ کی استطاعت ہو سکے, جتنا آپ اپنے دائرے میں رہ کے کر سکیں اتنا پلیز ضرور کیجئے گا, اور سب کی خیر خواہی کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. لاہور کے سابقہ صدر ارائی کمیونٹی میاں افضل ارائی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جی میاں افضل ارائی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دنائے سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا, فروغ وادی سینہ, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب, سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معزز ساتھیوں کو جو تشریف لائے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کے لیے بڑی اپریسیشن ہے کہ اپنا قیمتی ٹائم اپنے قبیلے کے لیے نکالا انہوں نے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہم سب مخلص ہیں, اور یہ ایک کارواں ہے جو میاں مطیع الرحمان صاحب نے جس کی ابتدا کی. آج الحمدللہ ہم سب جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ دکھائی دے رہے ہیں, اور اس موقع پہ چودھری ضیاء اللہ صاحب ہمارے ساتھی میرے ساتھ, پہلے جب میں صدر اور یہ جنرل سیکرٹری, پھر یہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری, اب ہم سب سینئر مرکزی جو نمائندگان ہیں اپنے میاں صاحب کے ساتھ, ہم سب کا ایک ہی نصب العین, ایک ہی مقصد ہے کہ ارائی کمیونٹی کی ویلفیئر کا ہر لحاظ سے خیال رکھنا ہے. خواہ روزگار کا معاملہ ہو, بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہو, کوئی بھی معاملہ ہو اس میں, یا کسی کے ایڈمیشن کا معاملہ ہے, کسی کا اور کوئی مسئلہ ہے, سوشل ہے, ان تمام مسائل کو ہم نے ایک یونٹ کی طرح فیس کرنا ہے, اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے اس کارواں کو بڑھانا ہے. میں چونکہ ٹائم کی شارٹیج ہے, ایک بار پھر سب کا مشکور ہوں جو لوگ اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں. بہت شکریہ. ارائی کمیونٹی کے بڑے ہی ہمارے سینئر رہنما چودھری طارق نیاز ارائی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ وہ ابتدائی ممبر ہے جو اس قافلے کو لے کر چلے, اور پھر ایسے چلے کہ قافلہ رکنے کا نام نہیں لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم جناب مطیع الرحمان صاحب ارائی چیئرمین ارائی کمیونٹی پاکستان, محترم جناب ضیاء اللہ چودھری صاحب جنرل سیکرٹری ارائی کمیونٹی پاکستان, محترم جناب اور میرے دیگر مہمانان گرامی اور میرا خاندان اور میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکیلے ہی چلے تھے جان بے منزل, مگر دوست ملتے گئے, خاندان ملتا گیا, کارواں بنتا گیا. آج سے 5-6 سال پہلے جب کورونا کا دور تھا, اس دور میں یہ فکر اور سوچ لے کر ارائی کمیونٹی پاکستان کے چیئرمین محترم جناب مطیع الرحمان صاحب کرونا کے دور میں اس خاندان کی فکر اور سوچ کو لے کر آگے بڑھے, اور الحمدللہ ہم 4-5 لوگ تھے جب یہ پہلی میٹنگ گجرانوالہ میں انہوں نے کال کی, اور ہم گئے, اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں ارائی کمیونٹی پاکستان کی ضلعی تنظیمیں اور تحصیل لیول کے اوپر ایک تنظیم سازی ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سے پہلے
बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन्होंने इस खानदान को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वो ग्रास रूट लेवल तक ना तो लोगों तक पहुंच सके, ना उनके साथ कोई ऐसी हमदर्दी थी। एक एग्जीक्यूटिव क्लास के लोग थे जो समझता हूँ कि उनको इकट्ठा करके कई साल में एक आधा दफा कोई खाना खिला दिया और उसके बाद वो अपने अपने घरों की तरफ हो गए। और आज ये अराइक कम्युनिटी पाकिस्तान को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने उस ग्रास रूट लेवल तक, उस खानदान तक पहुंचने की कोशिश की है जो वाकई मुस्तहिक हैं। मैं समझता हूं कि अराइक कम्युनिटी पाकिस्तान आज तक जो चल रही है बगैर फंड्स के, अपनी मदद आपके तहत जो महदूद वसाइल हैं उन वसाइल के साथ उस ग्रास रूट लेवल तक लोगों की अमदाद करने में, आई कैंप लगाने में, कोई वेलफेयर करने में कोई कसर उठा नहीं रखी। मैं बिला तफरीक उन खानदानों तक पहुंचने की कोशिश करती है जो खानदान वाकई मुस्तहिक हैं। मैं इन सारे जो टीम के, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मियां सरवर साहब, सरवर मिराज साहब इस काफले को लेकर, और ये पूरी टीम जो आज जिला लाहौर की एक टीम मुंतखब हुई है जिन्होंने ये सेरा उठाया है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में जिला लाहौर की टीम पूरी अपनी जोश और खरोश के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ इसको आगे लेकर बढ़ेगी और उन खानदानों तक मुझे और आपको पहुंचना है जो वाकई मुस्तहिक है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये मेरा खानदान है, मेरे भाई हैं, हम एक जान हैं। अराइक कम्युनिटी पाकिस्तान एक जान होकर, यकजान होकर इंशाअल्लाह लोगों के उन खानदानों तक पहुंचेगी जो वाकई मुस्तहिक हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहु। मैं इश्तियाक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएँ, फिर अपने ख्यालात का आगाह करें। मैं इश्तियाक एक हिस्ट्री का नाम है। मैं इश्तियाक एक हमदर्द दिल रखने वाले हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त मैं इश्तियाक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मेरे साथियों ने तो बहुत ही मेरे ते मेहरबानी कर दी है। अल्लाह ताला जो ये समझ ले रहे, अगर कोई कमी कोताही है तो अल्लाह इन्होंने गुमान के मुताबिक मैंने कर दे। मैं जनाब मुदीर रहमान साहब तो इन्होंने सारे जी टीम है इन्होंने मुबारकबाद देना कि अज के हालात दे विच, मुश्किल हालात दे विच ਜਦੋਂ कि अपने मामलात नहीं सुलझते तो ये साड़ी कम्यूनिटी साड़ी नूं लै के चले हुए हैं। मैं इन्होंने वास्ते दुआ गो हाँ कि अल्लाह ताला इन्हों की कोशिशें जरिए ने एक कबूल भी फरमाए और एक कम्यूनिटी साड़ी जी है इन्होंने मजीद अगे लैके जाए। गुजारिश है जब से मैं बना हूँ 2002 से MPA, तो मुझे ज़्यादा इत्तेफाक हुआ अपनी कम्यूनिटी को देखने का। लेकिन मैं जब भी गया आया तो हर दफ़ा नई कह ले अंजमन बन गई या कह ले नई हमारी जो बॉडी जो थी नई कोई अगली बॉडी में आ गया और हर एक ने एक ही बात की कि हम सबको इकट्ठा करेंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है, जो भी इकट्ठा करने के लिए आया वो अपनी बॉडी बना के आगे फिर चला गया और ये बातें शायद अच्छी भी नहीं लगती साथियों को। और आज तक हमें कोई ना सियाना बंदे नहीं लब्बा जरा सानू इकट्ठा ही कर ले। मैं अक्सर ये बात दर्द दिल से कहता हूँ, इतनी बड़ी कम्युनिटी है हमारी, इतनी हमारी अक्सरियत है और जो अक्सरियत होती जो अकलियत है ना उनमें बड़ा इत्तेफाक है। और बदकिस्मती ये है कि हम क्योंकि इतनी अक्सरियत में हैं और हम लोग जो है वो हमारा कहीं पुरसाने हाल नहीं है। किसी ज़माने में लाहौर में अगर मैं मिसाल दूँ तो लाहौर का मेयर हमेशा अराई आता था। ये बात तमा फिक्रिया हमारे लिए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हाथ हमारा अपना है इसमें ना। अगर हमारा मेयर ना आए तो उसमें हमारा ही हाथ। बदकिस्मती ये है कि अगर मैं इश्तियाक को 2002 में मैं पहली दफ़ा MPA बना था, फिर 8 में बना, फिर 2013 में MPA भी बना, MNA में बना।
फिर एक सिलसिला चलता रहा, लेकिन जब भी कोई मामला आया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इश्तियाक को हटाना है तो कोई अराई लगो, और कम्युनिटी का कोई बंदा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कि जो वहाँ पे आके कोई मुकाबला करते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हर दफ़ा एक सोच पाई जाती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपने जो हमारी सदर भी है, जो हमारे चेयरमैन हैं, मैं इनसे गुजारिश ये करूँगा कि कम से कम कोई इस तरह का आप मामला करें कि यार कोई एक बंदा हम में से खड़ा हो जाए, हमारी कम से कम आराई बरादरी में से किसी भी जगह पे, और बाकी जो बरादरियाँ हैं, बाकी कबीले जो हैं, उनमें इत्तेहाद हमसे ज़्यादा है, और जब उनका कोई बंदा आ जाता है तो वो तो जुड़ जाते हैं वहाँ पे। हमारे जो है बदकिस्मती है हमारी। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमें कोई ऐसा बंदा, सियासी बंदा वो नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा बंदा हमें चाहिए जो साहब हैसियत हो, जिसके पास बज़ाहिर, क्योंकि आजकल मैं ये पहले मुबारकबाद दूँगा लाहौर की जो तंजीम है, मैं इसमें से अक्सर साथियों को जानता हूँ यहाँ पे, ये बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, इनके अंदर अपना एक जोश और जज्बा है। मैं इनको जिनको जानता हूँ वो किसी भी लेवल में हो, चाहे वो किसी सर्कस में थे तो वहाँ पे भी उन्होंने डिस्टिंक्शन पैदा की, अगर वो अपने मोहल्ले में थे तो मैं कई साथियों को जानता हूँ वहाँ पे भी उन्होंने बड़ी खिदमत की, अपने इलाके की, अपने कबीले की भी साथ हो जाती है, लेकिन अपने इलाके की भी खिदमत की। तो मैं ये समझता हूँ ये जितनी आज तंजीम हमारे सामने आई है, इनके अंदर अपने एक, और जिन्होंने कहते हैं पंजाबी कीड़ा खिदमत का, तो ये भी अल्लाह की तौफीक से है कि अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी कि वो लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये लोकल लेवल पे भी, लाहौर लेवल पे भी, और पूरे पाकिस्तान लेवल पे भी, ये दूसरे ज़िलों से भी हमारे साथी यहाँ पे तशरीफ़ आए हैं। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा हमारी, मैं देखता हूँ कई दफ़ा जाके, और मुझे इत्तेफाक हुआ है, तो वहाँ उनकी यूनिटी हमसे लाहौर से ज़्यादा है। वो वहाँ पे जो अपने कबीले का है उसको हर तरह से जैसे भी हो उसकी सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ जब भी मुझे कोई बुलाता है मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे अपनी बात भी रखता हूँ। किसी ज़माने में मैं अगर पुरानी थोड़ा पीछे बात करूँ तो मैं देखता था, मेरे ताया जी थे वो उस वक्त, ये 2002 से पहले की बात है, यानी ये कह लें कि 90s में, तो सरदार अहमद अली वगैरह उस वक्त थे, हमारे बुजुर्ग जो थे। तो मेरे ताया जी हर हफ्ते हमारे पास एक वैगन थी, तो वो बढ़ के ले जाते थे कि आज जी वो फलां जगह पे मैं जा रहा हूँ जी, वहाँ पे राइयों का है, इकट्ठ है। तो उस वक्त तो वो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद उस तरह वो नहीं चल सका, और हम यानी बढ़ते गए आगे तंजीमों के आगे, और कई तंजीमें बहुत अच्छी भी आई, उन्होंने बड़े अच्छा काम भी किया, उन्होंने हमारे ऑफिसर्स को इकट्ठा किया, उन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटी को इकट्ठा किया, और वो भरपूर वहाँ पे होती भी थी उनकी नुमाइंदगी। और जब वो नुमाइंदगी होती थी तो मैं देखता था कि वो लोगों के काम भी होते थे। ज़ाहिर है कि जब आप इकट्ठे होते हो तो जज्बा भी एक बढ़ता है आपका। तो मेरी गुजारिश इतनी है सिर्फ कि ये जो आपने बेरा उठाया हुआ है, मैं समझता हूँ ये भी बड़ी अच्छी बात है। आज के ज़माने में तो किसी के पास टाइम नहीं है, तो आप लोग जो है ये जो लोग काम कर रहे हैं हमें उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। हम हर जगह पे आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि ये जो जितने अभी यहाँ पे साथी ने बात की कि पहले आई सी कि जरा एक बारी साल रोटी खवा लेता सी, वो साडा या तो सदर बन जाता सी, तो यार मैं देखता रहा किसी न किसी लेवल पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज ये मुदीर रहमान साहब और साथियों के साथ मिल के कोशिश करें कि ये सारी तंजीमें जो हैं हम इनको इकट्ठा कर पाए। और जब तक हम इकट्ठे नहीं होते ना, क्योंकि हमारे कई साथी हैं, कई बंदे कहते नहीं जी सानू तो लोग असी तो इस तरह जिस तरह कमी होने, मैं कहते नहीं असी सारे चौधरी हैं, हम अपने में से किसी को अपना बड़ा नहीं मान सके, बड़ा नहीं बना सके, बदकिस्मती है। और जो अब तक हम अपना एक बड़ा नहीं, चाहे मुदीर रहमान साहब ही हों, चाहे ये उम्र में मुझसे छोटे भी हों, किसी लिहाज से भी जैसे भी हों,
मुझे इनको मान लेना चाहिए, और जब मैं इनको मान लूँगा तो मैं समझ चले ये सारी कम्युनिटी का मामला जो है ये सुधर जाएगा, ये हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। हम किसी को मान नहीं रहे, हम सिर्फ मैं भी कहना मैं चौधरी और कहना जी वो चौधरी, मैं उनको मानता नहीं। और जितनी कम्युनिटीज़ मैंने देखी हैं वो किसी बंदे को आगे लगा के उसके बाद फिर उसकी नुमाइंदगी का हक भी अदा करते हैं। तो यहाँ हमारे बदकिस्मती ये रही कि बस ये कहा गया कि मैं सदर हाँ जी गराइयाँ का, तो मुझे तो कभी कोई मसला हुआ नहीं, मैं तो अपने नाम के साथ हमेशा मैं लगाता हूँ मुझे, और खाली मैं अगर इश्तिहार कहूँ तो मुझे कोई भी नहीं जानता, लेकिन अगर मैं इश्तिहार कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कम अज़ कम आधा पाकिस्तान को जानता हूँ। कहना ये है कि मुझे तो इसमें कोई शर्म और आड़ वाली बात नहीं है, जहाँ पे भाई हमारी ज़रूरत हो हम हाज़िर हैं। मैं एक दफ़ा फिर लाहौर की तंजीम को मुबारकबाद देते हुए अल्लाह ताला इनको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और इसी तरह ही अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएं। और ये जो आपने वहाँ पे मैंने अभी पढ़ा था, ये जो मंशूर पेश किया था, जो पहले 2019 के अंदर जो लिखा हुआ है, तो मेरा कहना था यहाँ पे ये भी बताया जाना चाहिए था, अगर से एक जन्नत सी बात तो की गई, तो एक स्पेसिफिक बताया जाना चाहिए था कि ये काम हमने ये 4 साल में किए हैं। और इसके अलावा भी बात यहाँ पे हुई, कोई भी सोसाइटी, कोई भी तंजीम, कोई भी चीज़ पैसे के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन ये भी कोई बात नहीं है। हमें चाहिए कि कम से कम हम अपने साथियों पे कोई ना कोई थोड़ी सी अमाउंट लगाएं, ताकि मुझे भी एहसास हो कि चल यार मैं 500 रुपया, ज़रूरी नहीं है कि आप सब सरबत से लें, वो तो मर्जी है, उस वक्त उसके हालात कैसे हैं, आदमी के हालात बदलते रहते हैं, किसी वक्त वो उसके पास बहुत सारा होता है, किसी वक्त नहीं भी दे सकता, लेकिन आप मिनिमम तो रखें। कोई आप मेंबरशिप भी आप शुरू करें, कोई ऐसा हो मुझे पता हो कि 1000 रुपया मैंने महीने का देना है, 10,000 देना है, 5 देना है, 2 देना है, तो कम से कम मुझे भी एक ओनरशिप हो कि यार ये मेरी तंजीम है, इसको मैं चाहे थोड़ा या ज़्यादा मैं सर्व करता हूँ। ज़ाहिर है इसी से फिर आप खिदमत कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही कम्युनिटी की। और अपनी कम्युनिटी की खिदमत का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि कोई ऐसा काम करें, ये पाकिस्तान की खिदमत है। जो हमारे लोग अपग्रेड होंगे तो यकीन करिए पाकिस्तान अपग्रेड होगा। तो मेरी गुजारिश ये है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें और रहमतें आप पे अता फरमाएं और आप इसी तरह खिदमत करें। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बात की कि मदद करें अपनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस है, सहाबा कराम बैठे हुए थे तो किसी शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह कोई ऐसा तरीका बता दें कि जब कोई हमसे मदद मांगता है हमें कैसे पता चलेगा कि वो ठीक है या गलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया, फरमाया तुम उसकी मदद कर दो, अगर तो वो ठीक हुआ तो अल्लाह तुम्हारी वो ख्वाहिशें पूरी करेगा जो तुम अल्लाह से मांगोगे, और अगर वो तुमसे गलत बयानी कर रहा हुआ तो अल्लाह तुम्हारी वो ख्वाहिशें भी पूरी करेगा जो तुम अल्लाह से नहीं मांगोगे। तो देने वाला हाथ जो है वो हमेशा अच्छा होता है। आप किसी मांगने वाले की नीयत पे शक ना करें, आप अपनी नीयत से दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बैठे हुए हैं और इस पुरवकार तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मज़र फरीद अराई साहब से जो उकाड़ा से तशरीफ़ लाए हैं और सेक्रेटरी इतलात है पंजाब अराई कम्यूनिटी के कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए और मुख्तसर खिताब फरमाए। जी मज़र फरीद अराई साहब ये हमारे बड़े ही भरपूर कारकुन हैं, वो बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने जो कुछ भी कहा ना जी, मैं उन्होंने सारिया दी गल्लां दी तायीद करदा जी। सब तो पहले तो कट ही जरूर कट करांगे तो कामयाबी है, वरना नहीं। खुदा हाफिज़। सीनियर नायब सदर है, वो फरमा रहे हैं कि भूख लगी है तो खाना हमने देना है इंशाल्लाह। तो थोड़ी देर आप थोड़ी सी इजाज़त दे दें, थोड़ी सी इजाज़त दे दें जी, बड़ी मेहरबानी जी। मैं दरख्वास्त करूँगा अपने सीनियर नायब सदर मियाँ कैसर
राही साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और मुझसे सख्त आप करें। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਯੰਗ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ ਡੋਰ ਬਾਗ ਭਾਲਾਂਗੇ ਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس پروقار تقریب میں کچھ جو آج کے عہدیداران ہیں ان کے لیے چند الفاظ میں کہنا چاہوں گا۔ یہ جو پروقار تقریب ہے، یہ جو لمحہ خوشی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے کہ جیسا کہ ہم حلف لیتے ہیں، حلف نامہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم صدقے دل سے حلف لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سچے دل سے اپنے ساتھیوں کا جو حقدار ہیں ان کے لیے کام کریں گے، ان کو جو ہو سکا، جو ان کی ضرورت ہے پرووائڈ کریں گے۔ مجھے میرے بڑے محترم بڑی خوبصورت بات لگی جناب میر اشتیاق صاحب کی کہ ہر کوئی شخص تو اپنے عہدے کے چکر میں، کوئی صدر بننے کے چکر میں، کوئی چیئرمین بننے کے چکر میں ایک کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلا کے صدر بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ صدر صاحب نہیں مل رہے ہوتے۔ تو یہ جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں میاں مدیر الرحمان صاحب، امتیاز صاحب، یہ جو ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں، میں نے ان میں بہت ان کے ساتھ اب 2-4 میٹنگیں اٹینڈ کی، مجھے ان میں جو لگن، جو ان میں جنون ملا، میرا بھی دل کرتا ہے میں کوئی نہ کوئی کام کر سکوں۔ اور الحمدللہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے، کرم ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اور میں جو کر سکا، جو بھی اپنی برادری کے لیے کر سکا، انشاءاللہ میں ہر لحاظ سے کھڑا ہوں گا۔ میرا کام گولڈ کا ہے، اس لحاظ سے کسی شخص کو کسی طرح کی ہیلپ ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا ریزورٹ میاں مینشن کے نام سے تقریباً آدھا لاہور جانتا ہے۔ کوئی بندہ وہاں شادی کرنا چاہے، وہ ہم نے کسی کپڑی کو دیا ہو، کوئی بندہ وہاں اس کو شادی کرنا چاہے، جو ہمیں پیسے ملتے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کسی برادری کے بندے سے نہیں لوں گا، وہ وہاں پہ فنکشن کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کمیونٹی میں جتنا بھی میں اپنا حق ادا کر سکتا ہوا کروں گا، اور میں اپنے تمام عہدیداران کو یہ کہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس لاکھ ہے تو وہ لاکھ ہونا ضروری ہے، کسی کے پاس 100 روپے ہے، کسی کے پاس 1000 روپے ہے، خدمت خلق کا جذبہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے کسی کو نفع ہو۔ تو ہمیں ہر کسی کے لیے نفع کا باعث ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، ہم نے جو آج یہ عہدہ اٹھایا ہے، عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں کام کرنے اور اس پر استقامت دے۔ ہم اس پر لوگوں کی، اپنی برادری کی، اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہو جائیں۔ کوئی عہدہ، کوئی چیز، ہر چیز بلکہ یہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، رہنا نام صرف اللہ کا ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنائیں، لوگوں کے لیے اچھے کام کریں تاکہ رہتی دنیا تک آپ کو بھی لوگ یاد رکھیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے کچھ نئے مہمان آئے ہیں، ہم کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ میاں ظفر صاحب تشریف لائے ہیں، ایڈوکیٹ ایاز تشریف لائے ہیں، ڈاکٹر میاں فراز آئے ہیں، ڈاکٹر میاں طیب آئے ہیں، میاں شباز غوث صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میاں عبداللطیف صاحب مالیٹون سٹی سے تشریف لائے ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا، یہ میاں اشتیاق صاحب نے بات کی ہے کھانا کھلانے پہ صدر بن جاتے ہیں۔ میں بتا دوں ہمارے جو صدر بنے ہیں انہوں نے 4 سال کھانا کھلایا سر، 4 سال بعد بنے ہیں صدر۔
मियाँ सरवर बराज में के लिए क्लैपिंग हो रही है जी। मैं दरख्वास्त करूँगा टोबा टेक सिंह से, हमारे बड़े एक अच्छे दोस्त तशरीफ़ लाए हैं मियाँ मोहम्मद आज़म अराई साहब से, जो स्टेज पे तशरीफ़ लाए और मुख्तसर खिताब करें। जी मियाँ मोहम्मद आज़म अराई साहब, बस थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखिएगा, काफ़ी दोस्त हैं तो। शारद साहब तशरीफ़ लाए हैं और मियाँ शुएब अहमद आलम तशरीफ़ लाए हैं, MB कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। मोस्ट वेलकम जनाब मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रखो निगाह बुलंद, यही है राज़े हयात। रखो निगाह बुलंद, यही है राज़े हयात। रहो ज़मीं पर मगर आसमां की बात करो। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सब जानते हैं कि अराई कबीला इस वक्त भी पाकिस्तान में तकरीबन 50% के करीब अराई है, बाकी 50% बाकी सारी कौमें हैं। इतना बड़ा कबीला, इतनी अक्सरियत रखने के बावजूद मैंने महसूस किया है कि हमने अपना वजूद कायम नहीं किया, ना मुल्क में, ना गांव में, ना किसी तहसील में, ना ज़िले में। बराए मेहरबानी अपना वजूद कायम करें। कैसे? आपके नाम के साथ सारे अराई लिखना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी कौम से तल्लुक़ रखते हैं जिसकी सिफात, बहादरी और वफा पाकिस्तान के साथ, इससे पहले बरसगीर के साथ, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम के साथ हमारी शुरू से वफादारी चली आ रही है। आपको याद होगा, सुना होगा कि जब गज़वात होते थे तो फतह का झंडा जिस पे अराई लिखा होता था, वो अराई कबीले के लोगों को क्यों थमाया जाता था, क्यों पकड़ाया जाता था कि ये वफादार हैं, बहादुर हैं, गिरने नहीं देंगे, इस पे दाग भी नहीं लगने देंगे, संभाल के रखेंगे। अजीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ी अपील है, मैं एक फकीर बनकर आज आप सबसे अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने कबीले का वजूद कायम करें और याद रखें जितना बड़ा कबीला है उसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं। अपने कबीले के फुकरा को, गरीबों को, यतीम बच्चों को, बच्चियों को, तालीम से जो लोग रह रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही, इन सब का आप साथ दें, इन सब के लिए फायदेमंद साबित हूँ। सिर्फ ओहदा लेकर बैठने से, हार पहनाने से कुछ नहीं होता। सारे लाहौर वाले जितने भी ओहदेदारान जिनको नए ओहदे मुंतखब हुए हैं, मैं इन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ बराए मेहरबानी हर अजलास से, पूरे पाकिस्तान से सारे ओहदेदारान अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और याद रखें, अगर कोई राय बिरादरी से या दूसरे कबीले से कहीं से भी कोई आपसे आके दरख्वास्त करता है, कुछ मांगता है या रिक्वेस्ट करता है, हेल्प मांगता है, तो उसकी जरूर करें। क्यों? एक शेर सुना के मैं खत्म करता हूँ। फैले हुए दामन को हकारत से ना देखो, फैले हुए दामन को हकारत से ना देखो, हर शख्स की चौखट पे सवाली नहीं आता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं समझता हूँ कि ओहदा होना एक नुमाइंदगी है और फ़ख्र करना चाहिए किसी को कोई भी ओहदा मिले। और जब कोई ओहदा मिलता है तो जब अल्लाह किसी को ओहदे से नवाजता है तो कोई ना कोई उसका काम अच्छा होता है तो पब्लिक में आता है। और ये अल्लाह ताला का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह जिसको इज़्ज़त दे तुम भी उसकी इज़्ज़त करो। तो ये अगर हम समझ लें कि जिसको अल्लाह ने नवाजा है, कोई ना कोई वजह है, तो आप उसकी इज़्ज़त करें, उसको उसका उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें, क्योंकि फिर अल्लाह आपको भी नवाजेगा। क्योंकि शुक्र जो है वो नेमतों में इजाफा करता है और आपकी जो है कामयाबियों में भी वो इजाफा करता है और अल्लाह ताला भी खुश रहता है। मैं सदर चौधरी सुल्तान अराई आरोवाला से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए, और इसके बाद मैं जनाब चौधरी वसीम साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज को संभालें, ताकि मैं वसीम साहब की दरख्वास्त पर खाने का जो लाइन है उधर संभालूँ। जी वसीम साहब। ऑर्गेनाइज किया और हमारे दरमियान बहुत सारे और भी मेहमान अभी तशरीफ लाए हैं जिनकी लंबी लिस्ट है। उसमें हमारे साथ चौधरी सुल्तान अराई साहब आरफवाला से, जो हमारी अराई कम्युनिटी के सदर हैं आरफवाला के, वो उनको हम खुशामदीद कहते हैं। और अभी थोड़ी देर में हम इख्तितामी मराहल में दाखिल होने जा रहे हैं।
अभी हमारे जो चौधरी एम जिया चौधरी साहब हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोडियम पे आएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी एम जिया चौधरी साहब। पहले खालिद हबीब साहब, पहले खालिद हबीब साहब सर प्लीज। खालिद हबीब साहब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मुहम्मद व सल्लम। तमाम मेंबरान को जो तशरीफ़ फरमा हैं उन सबको मुबारकबाद, जो आज मुंतखब हुए हैं उनके मुबारकबाद, और इस दुआ करते हैं कि वो इसके अगराज़ व मकासद के पेश नज़र अपनी खिदमत सर अंजाम दें। एक दो बातें ज़रूरी मैं कहना चाह रहा था। एक तो ये है कि मैंने टीनेज में एक बुक पढ़ी थी तहरीक अराइयाँ, तो मेरी ये दरख्वास्त है जो हमारी इंतज़ामिया है कि वो बुक जो है ना तहरीक अराइयाँ अरेंज करें, उसकी पब्लिसिटी हो ताकि जो हमारी यूथ है वो अपनी तारीख पढ़े, ताकि यूथ जो है अपनी बरादरी का ख्याल करे। और इस तरह एक और प्रपोजल है कि मंथली मैगज़ीन अराई कम्युनिटी के इस फोरम से निकलना चाहिए, जिसमें वो कंट्रीब्यूशंस और अदर एक्टिविटीज़ वगैरह वो सामने आए और तौर होते रहे। बाकी तीसरी बात ये है कि जो हमारे कुछ दोस्तों ने बात की है कट्ठ वाली बात, वो वाकई बड़ा ज़रूरी है। अगर वाकई सारे लोग इकट्ठे हो जाएँ, सारी तंजीमें वगैरह, तो ये बहुत ही अच्छा हो अराइयों के लिए। चौथी बात, दोस्तों ने बात की थी कि अक़लीतें मुनज़्ज़म होती हैं और अराई बरादरी इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अक़लीतें किस तरह भी हों वो सारी मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड ही होती हैं। मेजॉरिटी जहाँ जिस बरादरी की मेजॉरिटी हो, जिस हल्के की मेजॉरिटी हो, इतनी मुनज़्ज़म नहीं हुआ करती। मैं 2 चार गुज़ारिश थी, इनके साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया आपका चौधरी सुल्तान राय। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो रुलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन हाज़रीन को, इंतज़ामिया को, लाहौर बॉडी को, चेयरमैन साहब को बहुत बहुत मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। जनाब वाला, जैसा कि आप सबके इल्म में है, अराई कम्युनिटी को माज़ वजूद में आए आज पूरे 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो इसको चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो दिन रात मेहनत कोशिश की गई है, वो मियां मतीउर रहमान साहब की तरफ से, उसको अल्लाह करीम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हमारे MP MNA साहब यहाँ पे फरमा रहे थे कि लोग खाना खाने के लिए इकट्ठे होते हैं और वो सदर बनते हैं, पार्टियां वही रुक जाती हैं। लेकिन इसके साथ इन बातों का कोई तल्लुक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 5 साल पहले मैं जिला पाकपतन से हाजिर हुआ हूँ, बिलोंग करता हूँ आरिफवाला से। आरिफवाला की सतह पर यहाँ से बेशतर दोस्त इस बात के गवाह हैं, चेयरमैन साहब वो भी गवाह हैं। हमने एक इकट्ठ किया था जिसमें हजारों की तादाद में लोगों को इकट्ठे करके दिखाया और बरादरी का झंडा वहां पे बुलंद किया है। बरादरी को इकट्ठा करने के लिए हमने कुछ अपनी सतह पे क़यादत ज़वाबत
की बनाए हैं। हमने अपनी लॉयर्स की एक लीगल टीम अलहदा तरतीब की है जो बरादरी और गैर बरादरी गरीब लोगों के फ्री में काम आती है। हमने अपनी एक एजुकेशन की टीम तरतीब की हुई है जो बरादरी गैर बरादरी सब लोगों के लिए उनकी तालीम को जारी रखने के लिए तमाम सहूलतें उनको मुहैया करती है। आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी क्लासों में बच्चियां जो फीसें अदा नहीं कर सकते हैं उनकी फीसों का एहतमाम करके 250 बच्चियों की फीसें अदा कर चुके हैं। अभी मैं एम जयावला चौधरी साहब सीनियर मेंबर अराई कम्युनिटी पाकिस्तान बाबा अराई को तशरीफ दावत देता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब मियां मतीउर रहमान साहब चेयरमैन अराई कम्युनिटी पाकिस्तान, मोहतरम जनाब शहबाज सरवत साहब सदर डीलर्स एसोसिएशन सब्जाजार, मोहतरम जनाब सदर अब्दुल लतीफ साहब सदर डीलर्स एसोसिएशन लिंक रोड मॉडल टाउन, मेरे दीगर अजला से आए हुए ओहदेदारान और कारकुरान, मेरे लाहौर के मुअज़्ज़ज़ीन, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ और सलाम भी पेश करता हूँ। जी बातें बहुत हो चुकी, काफ़ी वक्त भी हो चुका। दोस्तों जो बाहर से दूसरे इजलास से हैं उन्होंने ज़ाहिर वापस भी जाना है। तो बाद 5 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशनल पीरियड इसको कह ले, तरबियत का पीरियड कह ले, हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा अहबाब तक अपनी आवाज़ पहुँचाने की, अपने मंशूर को लेकर। आज तक हमने, जैसा कि मेरे रिश्तेदार साहब ने कहा कि फंड ज़रूरी हैं, बेशक ज़रूरी हैं, लेकिन हमने माजी की तंजीमों से सीखते हुए कि ये फंड्स ही एक ऐसी चीज़ है जो लड़ाई का बायस का तंजीमों के तफरीक का बायस बनी, ये एक फंड ही था। तो हमने 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, हमने ये जो तरीका कार है थोड़ा सा बदला। हमने जो ओहदेदारान होते हैं, जो एग्जेक्टिव बॉडीज के मेंबरान होते हैं, उनको ये मोटिवेट किया कि सबसे पहले आप जो ओहदा लेते हैं आप जस्टिफाई करें, अपनी पॉकेट से वेलफेयर के कामों को करने का आगाज करें, लोगों को बताएं कि हम आपके लिए बिलौस काम करना चाहते हैं और जानते हैं, कर भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुताबिक हो रहा है, जैसा कि मियां सरवर साहब ने यहाँ पे आपको बताया भी, और इंशाअल्लाह आइंदा बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स का भी ऐलान किया, वो भी आप सब भाइयों के तावन से ही हो सकेंगे इंशाअल्लाह। और दोस्तों साथियों, तंजीम बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद कि हमने अपने खानदान के पिसे हुए तबके, जरूरतमंद तबके की बेलौस खिदमत करनी है और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करनी है। ओहदा होना जरूरी नहीं है, किसी के पास ओहदा हो ये तो जरूरी नहीं है नेकी का काम करना है। ये अल्लाह की रजा के लिए जिसने करना है उसको हर जगह पे मौके मौजूद है, किया कीजिए। इस तंजीम के प्लेटफॉर्म पे जो 2 चीजें हमने बैन की है, एक सियासत नहीं होगी और दूसरी मजहबी तफरकाबाजी की बात नहीं होगी, और जो तीसरी सबसे अहम बात है कि इस तंजीम में कोई कादियानी किसी सूरत मेंबर नहीं बनेगा। ये मुख्तसर सी तारीफ है जिसके लिए हम गुज़श्ता 5 साल से मियां मतीउर रहमान साहब की सरबराही में कोशा हैं। आप सबसे मेरी अपील है जो पंडाल में तशरीफ फरमा है, जो पहली दफा आए हैं, कि दोस्तों साथियों जहां पर भी हो, जैसे भी आपके पास कोई आवाज पहुंचे, अराई कम्युनिटी की तरफ से कोई वेलफेयर का काम करना, किसी बच्ची की शादी का मामला हो, किसी बच्चे की तालीम का मामला हो, किसी के सेहत के मामला हो, तो आप सब बढ़ चढ़ कर उस पर किरदार अदा किया कीजिए। ये आपके दुनिया में भी काम आने वाली चीज है और आखिर में भी इंशाल्लाह काम आएगी। मैं यहाँ पर हमारे एक साथी है खालिद कसूरी साहब, यहाँ पर तशरीफ फरमा होंगे। खालिद कसूरी साहब ये मेरे वो साथी हैं, ये हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं। आजकल
یہ صوبائی منسٹر پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پرسنل اسٹاف آفیسر ہیں. ان کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ پنجاب کے تمام ہاسپٹلز میں کسی بھی رائی بھائی کو کہیں بھی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو یہ ہمارا بھائی ہمارے شانہ بشانہ ہوتا ہے. ان کے لیے بہت بہت تعلیہ جی. ایک ٹیلی فون کال پر کنسرن ڈاکٹرز کو، کنسرن ایم ایس کو، پی آئی سی میں ہو، جناح میں ہو، سروس میں ہو، جنرل میں ہو، میو ہاسپٹل میں ہو، کہیں بھی کسی بھائی کو کام ہوتا ہے تو یہ بھائی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوتا ہے. ہم اسی طرح ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. 200 ساتھیوں یہ جذبہ ہم سب میں ہونا چاہیے. یہی شوق، یہی ذوق پیدا کرنے کی آج کی بھی ہماری کاوش ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اس اتحاد کو، اس اتفاق کو اسی طرح قائم و دائم رکھے. وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. پاکستان پاکستان یار آواز نہیں آ رہی، بھوک لگ گئی. پاکستان ارائے کمیونٹی پاکستان ارائے اتحاد. ہم نے پیچھے بنا گئے اور کے بارے میں اپنا خیالات میاں علی ابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا شاید عام میں روایتی طریقے سے تو لیکن بھی آگے پتا چلا کہ آپ سے سن بھی ہیں اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ اتنی دیر بیٹھنے کے بعد جتنی مرضی اچھی اور پیاری باتیں کر رہے ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں لگتی. لیکن کیونکہ میں پہلے دفعہ آیا ہوں یہاں پہ تو میں چھوٹی دو باتیں کہنے چاہتا ہوں. مجھے یہ پتا چلا کہ ہماری میں فخر ہے کہ ہمارا تعلق ارائی برادری سے ہے. میرا تعلق تاجر پانی کا لے آئیے اور لاہور کی اور پاکستانی سالہ بھی نمائندگی ڈال کے لے اور تاجروں میں بھی ارائیوں کی بہت بزنس سے تعلق رکھتی ہے. میں یہاں سے صرف ایک چیز کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کیونکہ جو لوگ بھی برادری کو ایک تسکی کی طرح لڑنے کو پرو رہے ہیں اور اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اقدام جو ہے انتہائی قابل تحسین ہے اور اس کی جتنی حوصلہ افزائی ہو وہ اتنی کم ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات میں ایک معذرت کے بغیر کرنا چاہتا ہوں اور میں اپنے ان دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں جو بیوروکریٹس ہیں، جو پولیس میں ہیں، جو دیگر محکموں میں افسران ہیں، ذمہ داری ادا کرتے ہیں. تو عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کیونکہ ہم ٹریڈرز ہیں، ہمارے بہت سارے محکموں میں آنا جانا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ یہ ہماری برادری کا آدمی جو ہے نا یہ یہاں پہ ڈائریکٹر ہے یا ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے. تو اس خوش فہمی میں ہم بعض دفعہ یہ ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل، شعور، تعلیم اگر آپ کو دے رکھی ہے تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری برادری کا کچھ ثبوت، ہماری برادری کا کوئی نمائندہ یہاں پہ ایک اعلیٰ منصب پہ فائز ہے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے اس کو امتحان میں نہیں ڈالنا کیونکہ ساری برادریاں جو ہیں، سارے عوام جو ہیں اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، جس میں میرٹ سے ریفرنس ہوتا ہے. لیکن جس حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ہماری برادری کا آدمی صرف یہ سمجھ کے، یہ پہچان کے یا اسے پتہ چل جائے کہ میرے پاس جو سائل آئے ہیں ان میں یہ آدمی میری برادری کے ہیں، صرف اتنا احساس دلا دے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے آدھے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں برادری کے. اور یہ بھی میں بتا دوں، ارائی برادری کے بے شمار تنظیمیں ہیں. میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ تجویز دیتا ہوں آپ کو کیونکہ ہم نے تاجروں کو آرگنائز کیا ہے اور بے شمار تاجر تنظیمیں ہیں لیکن ڈنکا اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محنت کا بج رہا ہے. آل پاکستان انجمن تاجر نئی گروپ آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے یہ. تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی تاجر تنظیمیں ہیں، میری یہ تجویز ہے یہاں پہ جو ہمارے بااختیار ساتھی ہیں، ہمارا تو تعاون
गैर मशरूत तौर पे इनके साथ होगा, लेकिन अगर तमाम ग्रुप्स में से 2-2 आदमी आप ले लें और उनको ये कहें कि आप ताजरों की आप बरादरी की जो खिदमत कर रहे हैं, आप अपने ग्रुप की पहचान के साथ, कोई अंजुमने अराइयाँ, कोई तंजीमें अराइयाँ, कोई तहरीकें अराइयाँ, कोई अराई कम्युनिटी, कुछ भी, आप अपनी पहचान के साथ हमारे साथ आए, एक अलायंस की शक्ल बना रहे। भाई अपनी इसीलिए ग्रुपबाजी होती है ना, मैं सदर हूं तो भाई तू दूसरे ग्रुप का सदर, मैं तुझे नहीं मानता, यही बात होती है ना। आप उनको इज्जत दें, उनको कहें तुझे तू भी जिंदाबाद, तू तहरीके तू भी जिंदाबाद, तू अंजुमने अराइयाँ तू भी जिंदाबाद, लेकिन एक काउंसिल बना दें, अलायंस की शक्ल में बना दें और यकीन जान लें उस वक्त फिर आपको इस तजवीज़ के जब अमल होगा ना इस तजवीज़ पे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फल इस शक्ल में मिलेगा कि आप एक बड़ा फैसला करना चाहेंगे कि अराई कम्युनिटी का ये फैसला है और उसकी काउंसिल तौसीक करेगी तो वो पूरी बरादरी का फैसला कहलाएगा। ये है मेरी तजवीज़ और मुझे उम्मीद है, मैं ये बात जो कर रहा हूँ मैंने प्रैक्टिकली किया है। हमने ताजरों के तमाम ग्रुप्स को, अपने तमाम मुखालफिन को, उनको इकट्ठा किया और उनको कहा कि जनाब आप अलायंस में अपनी पहचान के साथ आ रहे हैं। जब वो आना शुरू हो गए तो फिर हमारी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और हुकूमत को पता चल जाता था कि ये ताजर सारे इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। खलूस तकरीर जो अराई कम्युनिटी लाहौर की जानब से जारी है, इसमें मियाँ मोहम्मद अहमद एडवोकेट बिल्डर अजान खसूसियत तशरीफ लाए। हम उनको भी समीने कल्ब के साथ खुश आमदीद कहते हैं। इसके बाद वक़्त की कमी है, पुरजोर इसरार पर जो हमारी कायदीन की आला बॉडी के मेंबरान हैं, उन्होंने 2 पर्सनैलिटीज़ के लिए कहा है। उसमें मियाँ मुख्तार अली साहब हैं जो सदर हैं अराई कम्युनिटी रेनाला खुर्द के, उनसे इल्तमास है कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वक़्त की कमी को मलहूज़ खातिर रखते हुए जनाब मियाँ मुख्तार अली साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसी असना में हमारे मुल्क के और अराई कम्युनिटी पाकिस्तान के हर दिल अजीज शख्सियत लाहौर की पहचान, मेरी मुराद जनाब मियाँ नुमान साहब MPA से है, वो तशरीफ लाए। हम उनको अराई कम्युनिटी लाहौर की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं जनाब मियाँ नुमान साहब। मेरे दोस्तों, ये इतना बड़ा कबीला की हमें जरूरत थी, इन्हें इकट्ठा करने की जरूरत थी। तो वक्त की कमी के बहस बातें तो बहुत करने की थी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमने जिला उकाड़ा में तनीम पे भी काम किया। हम अपने गरीब बच्चों के यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक हमने फीसें अदा की हैं और जो बच्चियों की शादियों में हमने काम किया। इसके साथ ही मैं तमाम दोस्तों का सलाम पेश करता हूँ। शुक्रिया जनाब। नेशनल बैंक से ताल्लुक है, वो आए और 1 मिनट के लिए अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मियाँ मोहम्मद सलीम तारिक साहब। सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अकीदत। बहुत खुशी है और दिल बाग बाग है कि हमारा ख़ानदान, हमारा कबीला आज इकट्ठा है और मुत्तहिद है। तो इसी के साथ शुक्रिया अदा करता हूं। आज की ये तकरीर जो अराई कम्युनिटी लाहौर की जानब से जारी है, इसमें हमारे बड़ी ही प्यारी शख्सियत जनाब मियाँ नुमान साहब तशरीफ लाए। मैं उनसे मुतमिस हूँ कि वो तशरीफ लाएं और आज की इस तकरीर में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मियाँ नुमान साहब।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, मैं दिल की गहराइयों से जनाब मियाँ मुतीउर रहमान साहब और डॉक्टर ज़िया साहब, अब्दुल रज़ाक जकल साहब, मियाँ सरवर मेराज साहब, डॉक्टर मुनव्वर साहब और जो कि पूरे पंजाब से मेरी इतला है कि तशरीफ आए हैं, अराई कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, अराई कम्युनिटी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से मैं इनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि इनके इस जद्दोजहद के नतीजे के अंदर अराई बरादरी, जो कि पाकिस्तान की वाज़ेह तरीन अक्सरियती बरादरी है, इसकी इल्मी, मुआशी, मुआशरती तरक्की के हवाले से अंदाज में जो जद्दोजहद चल रही है और अराई कम्युनिटी की मुख्तलिफ तंजीमें अपने अपने अंदाज के अंदर सरगर्म अमल हैं, तो मेरी दुआ है कि ये जो आज का एक गुलदस्ता और यहाँ पर जो बड़े खूबसूरत माशाल्लाह के और बड़े ख़ानदानी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों में बरकत डाले और इस बरादरी के जो मसाइल हैं, रोजगार के मसाइल हैं और बरादरी के कमज़ोर तबकात की जो उनको मजबूत करना, उनको पावरफुल करना, इस हवाले से एक जद्दोजहद है। अल्लाह ताला उनकी इस कोशिश में बरकत डाले। और मैं समझता हूँ कि कुरान मजीद में आता है कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कबीले बना दिए, ये बरादरियां बना दी, ये ख़ानदानी जो निज़ाम बनाया है, ये इस बुनियाद पर है कि तुम आपस में एक दूसरे की पहचान कर सको, एक दूसरे की आदात से वाकिफ हो सको। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ख़ानदानी निज़ाम और बरादरी का निज़ाम है, ये मिन जानिबिल्लाह है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन आगे फरमा दिया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा तक़वे के अंदर सबसे आगे है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला बरादरी के हवाले से जरूर जद्दोजहद करेंगे। क़राबतदारी का ख्याल करना, अपने अजीज़ो अक़रबा का ख्याल करना, ये बड़ी इस्लाम की बुनियाद है, मुआशरे की बुनियाद है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो मेरिट है और जब हम सरकारी तौर पर इस मुआशरे में काम करते हैं और जब हमारे ऊपर लोगों की जिम्मेदारी डाली जाती है, तो हमने बुनियाद, वो हमारी मेरिट है कि जो शख्स जिस काम के लिए मौजू है उसको वो वाली जॉब मिलनी चाहिए। उसको कहते हैं, अरबी का मुहावरा है कि अल-वज़्उ शै फी महल्लिही, कि हर शय को उसके महल और उसके मुताबिक रखना। और वो अंतुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, कुरान मजीद में आता है अंतुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, के अमानात को, अमानतों को उसके अहल लोगों तक पहुंचा दो, यानी जो डिजर्विंग लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जद्दोजहद का जो मरकज ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को तैयार करें, अपने आप को इतना मजबूत करें, फाइनेंशियली मजबूत करें, इल्मी तौर पे मजबूत करें और इतना कॉम्पिटेंट बना दें कि हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे वो दुनिया की दौड़ में सब बरादरियों से आगे निकल सके। और सारी असल मकसद ये होना चाहिए, हम किसी किस्म की कोई नाजायज फेवर नहीं करना चाहते किसी को भी, लेकिन असल चीज है कि वो जनरेशन तैयार की जाए जो इस दुनिया में आगे बढ़ती हुई दुनिया की दौड़ में हिस्सा ले सके। वो सिविल सर्विसेज का मैदान हो, वो जुडिशरी का मैदान हो, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हमारे बच्चे जाने चाहिए, सियासतदानों के अंदर हमारी पहचान होनी चाहिए। इस मुल्क की सियासत एक जमाने में अराई बरादरी की मरहून मिन्नत थी, बदकिस्मती से आज वो सूरत हाल नहीं है। तो इसलिए जरूरत इस अमर की है कि अच्छे खानदानों को सियासी तौर पर
آگے بڑھنا چاہیے اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے. جو برادریاں جدوجہد کرتی ہیں, محنت کرتی ہیں, آج دیکھیں کہ ان کا غلبہ ہے اس وقت سیاست کے اندر, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کام کو اس انداز میں آگے بڑھائیں کہ سب سے پہلا حق ہمارے بچوں کا, ہماری جنریشن کا اور ہماری برادری کا ہے, اور وہ حق اس طرح ہے کہ ہم ان کو علمی طور پر بھی ان کو سب سے زیادہ مضبوط کریں اور معاشی اور معاشرتی حوالے سے بھی جو سپورٹ ہے ان کی کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس کام میں, آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں ان کو خوب جوان ساتھی کا تعارف کروانا چاہتا ہوں. میرے پنڈال میں جو ساتھی بیٹھے ہیں ان کے لیے میسج ہے, جہاں پر ہم اپنے نوجوانوں کو چھوٹے سمال لیول پر جو بزنس کیے جا سکتے ہیں خاص ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو فارمولیشن سکھاتے ہیں, اور جب وہ بزنس کرنا چاہے تو وہ ان کو مشینری اور را مٹیریل بھی بچوں کو اپنے لیڈر کے ساتھ کتنی مخلص ہے جناب مطیع الرحمان, جناب مطیع الرحمان. آگے کو بنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل احترام دوستو, مجھے آپ سب کا نام یاد نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے آپ کا نام یاد ہو تو میں آپ کا نام لے کر آپ کا شکریہ ادا کروں. آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. یہ پیچھے کچھ دوست ہیں, میں چاہتا ہوں آپ سارے آگے آ جائیں. اور اس میں ہمارے جو ہے فیصلہ آباد سے پیر محمد صاحب یہاں پہ تشریف لے کے آئے, میں یہاں پہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. پاک پتن سے چودھری ناصر صاحب ہیں, چودھری سلطان صاحب ہیں, توبہ ٹیک چنگ سے اور کوٹرا راکیشن سے, گجرانوالا سے, اور آپ جو یہاں پہ لاہور سے دوست صاحب تشریف لے کے آئے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہترین جو پروگرام کو آرگنائز کیا گیا ہماری لاہور کی جو انتظامیہ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا سے جو دوست صاحب آئے, آپ تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے دوستوں نے, بڑوں نے اپنے خاندان کے بارے میں, تاریخ کے بارے میں, اپنی روایات کے بارے میں بڑی باتیں کی. میں یہ اپیل, یہ گزارش آپ سب سے یہی کروں گا کہ پہلے نمبر پہ تو رائیں کمیونٹی پاکستان عرصہ 5 سال پہلے مارد وجود میں آئی اور آج اس کو 5 سال مکمل ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک تاریخ بھی رکھتی ہے, یہ 5 سالوں میں بھی ایک تاریخ رکھتی ہے. جو سارے ساتھی ہیں میں تھوڑا سا وہ بھی بیان کروں گا. اور اس کے علاوہ ایک تاریخ ہے ہماری 1947 سے لے کے 2024 تک, کہ 2024 تک 1947 سے لے کے بہت ساری ٹیمیں, بہت ساری تنظیمیں مارد وجود میں آئیں. ان کا کیا کردار رہا اور ارائیں کمیونٹی پاکستان نے 5 سال میں اپنے خاندان کے لیے کیا کیا, اور آپ سب جو دوست احباب یہاں پہ تشریف لے کے آئے, آپ نے اس سے پہلے بہت ساری تنظیموں کو جوائن بھی کیا ہوگا, جیسے کہ مختلف قائدین نے دیگر تنظیموں کے بارے میں بھی بات کی. تو اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ کیا آپ سب یہاں پر جو موجود ہیں, جیسا کہ ہمارے ایک سینئر ممبر نے بولا کہ کھانا کا ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں, تو کیا آپ سب کا یہاں پر موجود ہونا کیا یہ بھی ایک کھانے کی نظر ہوگا؟ کیا ہم اسی طرح کے بہت سارے پروگرام کرتے رہیں گے اور اپنی جا کے فیملیوں کو کیا میسج دیتے ہیں, ہم ان کو کیا بتائیں گے
क्या इससे पहले हम बता के आए कि हम खाना खा के आए, आज हमारे रैलियों का कट था, आज लाहौर की तंजीम ने एक बड़ा प्रोग्राम किया, बड़ा मजा आया। आज पाकपतन, फैसलाबाद और पूरा पंजाब जो प्रोग्राम कर रहा है, ये सारे के सारे दोस्त अहबाब जो यहाँ पे मौजूद हैं, आप पहले नंबर पे तो आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं इस तंजीम को लेके, अपने खानदान को लेके, और फिर यहाँ से जाकर आप अपने मकाम पर अपने जो दीगर दोस्त अहबाब हैं, अपने खानदान के दीगर मेंबर हैं, और सबसे बड़ी बात तो सबसे पहला सवाल तो आपके घर में होगा ना। मुझे हो सकता है कि मैं पाकपतन से होके आया, मैं फैसलाबाद में खानेवाल से होके आया, तो मुझे भी मेरे घर वाले पूछते हैं, मेरी वालदा पूछती है, हाँ जी बेटा जी कैसा प्रोग्राम रहा, कैसे लोग थे, कैसे लोगों ने मतलब क्या किरदार अदा हुआ। आप लोगों से भी तो पूछा जाता है ना जी, तो क्या जवाब दिया जाता है? क्या हमारे इन तंजीमों की मौजूदगी में कभी कोई मसाइल हल भी हुए, या हम सिर्फ खानों की नजर है? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप सारे मेंबरान को अप्रिशिएट करने लगा हूँ, और यकीन माने ये चैलेंज से बात करने लगा हूँ कि जो तंजीमों के लोग खाना खिलाकर अपने आप को चेयरमैन, सदर, मुख्तलिफ ओहदेदार समझते थे, आज 4 लाख से ज्यादा जो मेंबर सोशल मीडिया हमारे ग्राउंड पे जो मेंबर हैं, वो सारे के सारे खाने खिला रहे हैं अपने खानदान को इकट्ठा करने के लिए। मेरी बात समझे नहीं आप? सवाल ये था कि हमारे कुछ मेंबर खाना खिलवा कर अपने आप को ओहदेदार समझते हैं, यही सवाल था जी। क्यों जी बोलते नहीं आप सारे दोस्त हैं? आप मेरे खानदान से नहीं है आप माशाल्लाह। अराई कम्युनिटी पाकिस्तान का नारा लगाए ना, जरा पता तो चले कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। अराई कम्युनिटी पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिर मेरी बात का जवाब भी देना जी। आज ये स्वाद हुआ ना कि हमारे मेंबर बड़े जो थे वो खाना खिलाकर अपने आप को ओहदेदार साबित करते थे, यही बात हुई ना जी। मैं चैलेंज से कहता हूँ, हमारे 4.5 लाख मेंबर एक दूसरे को खाना खिलाकर अपने आप को ओहदेदार भी नहीं कहते और फीस भी वाला काम कर रहे हैं। ये बात लाहौर तक महदूद नहीं है। ये 5 साल का जो पौधा लगा, ये पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान तक चला गया। मैं हमारी यहाँ पे जो बहनें तशरीफ लेके आई, मैं उनको भी मुबारकबाद और तस्लीम पेश करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये बात अब यहाँ तक नहीं है, अब बात ये है कि आप सबके मसाइल कैसे हल होंगे, कौन करेगा, किसके इंतजार में आप सब बैठे हैं? मेरे अपने खानदान का जो पिछड़ा हुआ तबका 1947 से लेके एक सोच और लगन में मर गया, कौन उसकी बात करेगा? वो आज भी मौजूद है, उनके मसाइल आज भी हैं। आप यहाँ पर बैठकर वापस चले जाएं, ये सबसे बड़ी बेवफाई होगी। आपको अपने मकाम पर जाकर उन पिछड़े हुए तबके का ख्याल करना पड़ेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, आप सारे यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कोई फख्र से हाथ खड़ा करके बता सकता है कि आपके घर के अंदर मसाइल नहीं है? मेरे खानदान का फर्द हो यहाँ पे इस तंजीम के प्रोग्राम में बैठा हो और वो समझे कि मेरे घर के अंदर ये मसाइल नहीं है, कोई खड़ा करके कहेगा। चैलेंज से कहता हूँ कि कोई बंदा हाथ खड़ा ना करे जी, लेकिन हमारे घर के अंदर बच्चियों की शादियों के मसाइल क्या मौजूद नहीं है? तो कौन उसको हल करेगा, कौन उसकी फिक्र करेगा? आज हम मशहूर के 40 साल तक बच्चों की शादियां होती हैं। तो मैं यहाँ पे लाहौर की बॉडी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे फॉर्म है, नंबर आपको मिल जाएगा, आप वो फॉर्म फिलअप करके हमारी टीम को दे दें अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से। इंशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह हम आपके सारे वो जो मामलात हैं उसके साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं। आप हिम्मत तो करें, हम अपने घरों में देखें, हमारे घरों के अंदर कितने नौजवान बच्चे बच्चियां जो नौकरियों के लिए पढ़े लिखे हैं, वो इसके इंतजार में बैठे हैं। किसने फिक्र करनी है? हम इतनी शर्मिंदा इस दौर के अंदर कि हम किसी से बात ही नहीं करते। अपने बच्चों की जॉब के लिए, हमारे हेल्थ के प्रॉब्लम, लोगों के हमारे घरों के आसपास देखें कितने लोग जो हैं वो बीमार हैं। वो शर्मिंदगी की वजह से, अल्लाह की कसम, वो मेडिसिन लेने के लिए जो हाथ नहीं फैला सकते। मेरे पास डेली फोन आते हैं। तो कौन उसकी फिक्र करेगा?
ये 5 साल का जो पौधा लगाया हुआ था, ये आज अगर हम समझे कि ये परवान चढ़ गया है, नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, ये अभी परवान नहीं चढ़ा, क्योंकि आप सबके घरों के अंदर मसाइल मौजूद हैं, आप सबके दिलों के अंदर मसाइल मौजूद हैं। यहाँ पर अपने अपने ओहदों की फिक्र की बात नहीं होनी चाहिए। ये जो तंजीम में 12-12, 15-15 लोगों का, ये तो सिर्फ एक सरबराही है, हम इसको फख्र ना समझें। ये कब्र के अंदर हमारे लिए राह बन सकते हैं, ये ओहदे, ये इज्जतें। अपने खानदान के पिछे हुए तबके की अपने मसाइल हल करने के लिए अगर आप समझते हैं कि जरूरत है, तो फिर कम्युनिटी पाकिस्तान के साथ, इनकी टीम लाहौर के साथ मिलके आप सबको काम करना पड़ेगा। वगरना मेरे बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से इस तंजीमों को चलाने वाले चले गए, वो भी बड़ी ख्वाहिश रखते थे मैंने भी चले जाना है। यकीन माने आप सब ने भी चले जाना है। ये कौन सा पौधा लगाकर हम जा रहे हैं, ये कौन सी फिक्र छोड़कर जा रहे हैं कि हमारे से पीछे हम अपने बड़ों का, हम अपने लिए सदका जारिया बन सके। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलादों को, हम सबको अपने बड़ों का लिए सदका जारिया बनाया। हमने क्या किया अपने बड़े जो इस दुनिया से चले गए? हम आज और ज्यादा तंजीमें बन रही हैं। भाई तंजीमें बनाने से हमें फर्क नहीं पड़ता, मेरे खानदान को फर्क नहीं पड़ता। फर्क वहां पे आता है जब हम एक दूसरे के मसाइल हल करते हैं। हम अपने खानदान के लोगों के जब मसाइल हल करते हैं, फिर फर्क आता है। क्या फर्क आता है? लोग घरों के अंदर चोलियां उठाकर राई कम्युनिटी पाकिस्तान के ओहदेदारों को दुआ देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, टाइम बड़ा कम है, आप लोगों से गुजारिश है, एक लोग आपसे अपील है, यहाँ पर आने का हक अदा करें, अपने खानदान के लिए हक अदा करें, अपने खानदान की सोच और फिक्र के लिए आप सब